गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथा पद, जहां पर लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। 1 John chapter 2 verse 4. Whoever says I know him but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. Amen. आप देखें यहाँ जो एक क्वेश्चन है उसके साथ जो है क्वेश्चन के साथ जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देखें यहाँ जो यूहन्ना है वो एक प्रश्न पूछ रहा है, whoever, कोई भी हो। यहाँ जो बात हम लोग कर रहे हैं वो एक क्रिश्चियन बिलीवर की। यदि मैं और आप बोलें कि मैं जो उनसे जानता हूँ, आई नो हिम, तो भाई साहब दिखाइए, कैसे दिखाइए? ओबीडियंस इज द पैराडाइम, ओबीडियंस इज द फोकस। आप जो है अपने जीवन में प्रभु के साथ संगति को दिखाइए। यू नो हिम एंड यू ओबे हिम। आप देखें इसी बात को जो है यूहन्ना कह चुका है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 10 पद। 1 John chapter 1 verse 10. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Amen. आप देखें यूहन्ना कह चुका है, यदि हम कहें हम उसे जानते हैं, हमें पाप नहीं है, हम जो है झूठे हैं। इस बात को आप देख लीजिए। पहले यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 22 पद। 1 John chapter 2 verse 22. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. आप देखें यहाँ जो प्रश्न है, वेरी पोइनेंट, वेरी फोकस्ड क्वेश्चन। कौन है जो कहता है यीशु मसीह नहीं है, उसमें जो है सत्य नहीं है, ये नो ट्रूथ इन हिम। आप देखें यहाँ बात कही है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 20 पद। 1 John chapter 4 verse 20. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. आप देखें यीशु मसीह को यूहन्ना कहता है वो सत्य वो है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे साथ आप सुन लीजिएगा यूहन्ना 8:55, 44। John chapter 8 verse 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. आप देखें यूहन्ना बात कर रहा है, यीशु मसीह बात कर रहा है उस व्यक्ति के जिसके जो सत्य को नहीं जानता है। इसे हॉस्टाइल मर्डर, यूहन्ना 8:55। John chapter 8 verse 55. Though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. आप देखें उसी बात को जो है रेवलेशन उसका 22 अध्याय 21 में कहा गया है। यहाँ जो बात की गई है वो है डेथ ऑफ ए लायर। एक जो झूठा है उसकी मौत कैसे होगी? Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur.
This is the second death. जो बात कही गई है, जो झूठे लोग हैं, जो ईश्वर निंदा करने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, लोगों की मृत्यु कैसे होगी? आग और गंधक से ऐसे मरेंगे। आप देखें, अगर आप देखें तो यहाँ जो यूहन्ना की पहली पत्री में जो है 8 बार जो है सत्य का वर्णन है। आप देखें, इन पदों को आप सुन लीजिएगा। पहला यूहन्ना उसका 1:6 और उसका 8:1-8। 1 John chapter 1 verse 6 and verse 8. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. आप देखिए यहाँ कहा गया है 2:4 में। 1 John chapter 2 verse 4. Whoever says, I know him, but does not do what he commands, is a liar, and the truth is not in that person. साथ ही साथ verse 21। 1 John chapter 2 verse 21. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. आप देखें उसके आगे पहला यूहन्ना 3:18-19 में। 1 John chapter 3 verses 18 and 19. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. This is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in his presence. पहला यूहन्ना 4:6। 1 John chapter 4 verse 6. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. उसके साथ साथ 1 John chapter 5 verse 6। Here it says, this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. आप देखें जो पवित्र आत्मा है उसको भी जो है सत्य का आत्मा कहा गया है। Amen. आप देखें जो सच्चाई है वो जो है पहले यूहन्ना का जो है फोकस है, सत्य है, सत्य का आत्मा है, जिसमें जो है सत्य नहीं वो झूठ है, उसमें झूठ की आत्मा है। वो झूठे जो लोग हैं they will not enter into heaven, they will die with fire and sulfur। वो लोग जो हैं आग और गंधक से मरेंगे। आप देखें यहाँ जो प्रश्न है, फिर से आप 2:4 पद आप सुन लीजिए। 2:4। 1 John chapter 2 verse 4. Whoever says, I know him, but does not do what he commands, is a liar, and the truth is not in that person. आप देखें, यदि कोई कहे मैं पिता को जानता हूँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, वो सत्य में नहीं चलता, वो कौन है? वो है झूठा। माय फ्रेंड से क्वेश्चन फॉर यू एंड मी, ये जो प्रश्न है आज मेरे लिए और आपके लिए है। एज ए क्रिश्चियन when I have a choice, choose to sin and choose to walk away from sinning। आप देखें whoever जो कहता है मैं उसे जानता हूँ और सत्य पर नहीं चलता, वो झूठा है। मैं और आप तो झूठे नहीं है ना? यस या नो? हम जो है झूठे नहीं हैं। हम कहते हैं हम जो पिता को जानते हैं, हम जो है उसके साथ हमारी जो संगति है उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं। लेट अस रीडेडिकेट आवरसेल्व्स। आइए फिर से एक बार अपने आप को जो है प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने आप जीवन को फिर से प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु जी फिर से एक बार मैं, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, प्रभु आपके लोग जो इस वचन को सुनते हैं वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मानना चाहते हैं, हमारे साथ हों,
हमारी मदद करें, ताकि हम जो है सत्य को जाने, सत्य का बखान करें और सत्य की आज्ञा माने। हम पर आप दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा समय तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन।